سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اگر متع جائز اور حلال ہے تو کیا آپ اپنی بیٹی کا متع کرانا پسند کریں گے؟ متع کا فائدہ کیا ہے؟ متع کی کنڈیشنز کیا ہے؟ متع ہم کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نکاح متع کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جیسے متع قرآن، روایات اور اصحاب کے قول و عمل سے ثابت اور جائز ہے، متع پراسٹیٹیوشن نہیں ہے، متع کنسنچول سیکس نہیں ہے، بلکہ متع اسلام کا ایک مقدس اور مسلم قانون ہے۔ یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی اور دوسری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان لنکس پہ جا کر ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ نکاح متع کی کنڈیشنز کیا ہیں، نکاح متع کس کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے، اور پریکٹیکلی متع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نکاح متع کے شرائط اور کنڈیشنز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح متع کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اس طرح ہیں۔ متع کی کچھ اہم شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رضایت، یعنی متع کے لیے مرد و عورت دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مدت، متع کی مدت معین یعنی فکس ٹائم پیریڈ ہونی چاہیے اور دونوں کو اس ٹائم پیریڈ پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مہر بھی معین ہونی چاہیے۔ نمبر 4، صیغہ پڑھا جانا، جس کا طریقہ ہم اس ویڈیو میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 5، متع میں عورت اور مرد دونوں شریعت کے مطابق کچھ شرط لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی کی طرف سے یہ شرط لگائی جائے کہ صرف بات چیت کی ہی اجازت ہے، فزیکل ریلیشن کے بغیر، تو یہ جائز ہے۔ اس قسم کی دوسری بھی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 6، لڑکی اگر باکرہ ہو تو باپ کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو اس صورت میں دادا کی اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر نکاح متع باطل ہے۔ لیکن اگر لڑکی ایسی طلاق شدہ یا بیوہ ہے جس کے شوہر کے ساتھ نزدیکی ہو چکی ہو تو اس کے لیے ولی کی اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ شریعت میں باکرہ کسے کہتے ہیں اور باکرہ کی کیا ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ باکرہ یعنی کنواری لڑکی جس کے ساتھ نکاح کے ذریعے ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی عورت معاذ اللہ نکاح سے پہلے زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے ہی حکم میں ہے، اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک ایسی عورت سے متع کرنے میں بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ باکرہ کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر معاذ اللہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے حکم میں ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت متع کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ نکاح متع کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نکاح متع مسلمان کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے کہ جس کے شرائط ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب غیر مسلمان سے بھی نکاح متع کیا جا سکتا ہے، اور اہل کتاب میں عیسائی، یہودی اور مجوسی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور مراجع اہل کتاب کے ساتھ متع کرنے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد عیسائی یا یہودی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کر سکتا ہے، لیکن شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح متع کے لیے اپنی بیوی کی اجازت لے۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر بیوی اجازت دے بھی دے تب بھی اہل کتاب کے ساتھ متع نہ کیا جائے۔ لیکن مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چاہے لڑکا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، احتیاط واجب کی بنیاد پر مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں ہی کے نزدیک غیر اہل کتاب کے ساتھ متع کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نکاح متع کی کنڈیشنز اور شرائط کیا ہیں اور کس کے ساتھ نکاح متع انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ متع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے نکاح متع انجام دیا جائے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی خود سے عقد متع پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، باکرہ ہونے کی صورت میں پہلے لڑکی اپنے ولی یعنی والد یا دادا سے اجازت لے گی۔ نمبر 2، اس کے بعد دونوں مدت یا ٹائم فکس کریں گے کہ کتنے دنوں کے لیے یہ نکاح متع کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مہر معین کریں، یعنی ایک اماؤنٹ معین کریں۔ مہر کا اماؤنٹ کم یا زیادہ معیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان 3 کاموں کو انجام دینے کے بعد نکاح متع کے صیغے جاری کیے جائیں گے جو اس طرح ہیں۔
पहले लड़की कहे ज़व्वजतुक नफ्सी फिल मुद्दतिल मालूमा अलल महरिल मालूम, उसके बाद फौरन मर्द कहे क़बिलतु। लेकिन याद रहे कि खुद से निकाह मुता के सेगे जारी करने के लिए कुछ शराइत हैं जो इस तरह हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू के मुताबिक एहतियात वाजिब की बना पर सेगा अरबी में पढ़ा जाए, लेकिन अगर अरबी में नहीं पढ़ सकते हैं तो दूसरी जबान में भी पढ़ा जा सकता है। क़स्द इंशा किया जाए, यानी दोनों ये नियत करें कि इन अल्फाज के जरिए रिश्ता ईजाद कर रहे हैं, निकाह पढ़ने वाले आकिल हों। अब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मौलाना अगर निकाह मुता जायज़ और हलाल है तो क्या आप खुद अपनी बेटी का मुता करवाना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, क्यों नहीं। वो निकाह मुता कि जिसको शरीयत ने हलाल और जायज़ करार दिया है वो सब के लिए है। अगर सवाल मेरी बेटी के बारे में भी हो रहा है तो जवाब यही होगा। ये कोई नया सवाल नहीं है जो मुझसे किया गया है, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी ये सवाल किया जाता रहा है। आइए देखते हैं इस रवायत को। एक हदीस के ज़ैल में अब्दुल्ला बिन मुअम्मर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहता है, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि आपकी औरतें मुता करें? इसके जवाब में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान, हमारी औरतों और हमारे पसंद नापसंद करने से हलाल और हराम साबित नहीं होगा। वो खुदा जिसने निकाह मुता को कुरान में हलाल और मुबाह करार दिया है, वो अल्लाह तुमसे और उस शख्स से जिसने ज़बरदस्ती निकाह मुता से मना किया है बहुत गैरतमंद है। तो वाज़े हो जाता है कि जो काम शरीयत ने हलाल और जायज़ करार दिया है उसके सिलसिले में शर्म और गैरत से काम नहीं लेना चाहिए। अगर गैरत से काम लेना ही है तो उन कामों के मुकाबले में लें जो हराम हैं। तो वही निकाह मुता जायज़ और हलाल होगा जो शरीयत के कवानीन और शराइत के मुताबिक अंजाम दिया जाए। हर रिलेशन और ज़िना को आप मुता का नाम नहीं दे सकते हैं और ये अमल जायज़ और हलाल नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि हम समाज में नामहरम लड़की और लड़के के दरमियान रिश्ते को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन निकाह मुता की जो जायज़ और हलाल है और इसके ज़रिए से लड़का और लड़की महरम हो जाते हैं, इस सिलसिले में शर्म और गैरत से काम लेते हैं। दोस्तों, जब निकाह मुता जायज़ और हलाल है तो इस सिलसिले में शर्म और गैरत का क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पर मैं वालिदैन और पेरेंट्स की खिदमत में कुछ बातें और पॉइंट्स अर्ज करना चाहता हूँ। एक, कुंवारी लड़की से मुता के लिए वली यानी बाप की इजाज़त ज़रूरी है। बाप की इजाज़त इसलिए ज़रूरी करार दी गई है क्योंकि वो अपनी बेटी की भलाई, नेकी और खैर चाहता है। मैं एक बाप के उन्वान से अगर अपनी बेटी का निकाह मुता करना चाहूँ तो उस जगह के ऊपर करूँगा जहाँ पर उसकी भलाई, खैर और नेकी होगी। लेकिन अगर ऐसा मुकाम हो जहाँ पर उसकी भलाई नहीं होगी तो मैं ये फैसला हरगिज़ नहीं लूँगा। यानी कंट्रोल वली यानी वालिद के हाथ में है। 2, बच्चों के सेक्सुअल डिज़ायर को समझें। हर इंसान में सेक्सुअल डिज़ायर होती है और जवानी के आलम में ये डिज़ायर पीक पर होती है। और दूसरी तरफ हमारे समाज में वेब सीरीज़ के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से हमारे बच्चों को गुनाहों की तरफ दावत दी जा रही है। सेक्सुअल कंटेंट उनके लिए इजीली अवेलेबल है। अब अगर हम सिर्फ शर्म और समाज का मुंह देखते हुए अपने बच्चों की मुश्किलात को हल नहीं करते हैं और जिसके नतीजे में वो गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो याद रहे कि हम भी उन गुनाहों में उनके साथ शरीक हैं। और इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू ताकीद करते हुए इस तरह फरमाते हैं, ये जान लें कि अल्लाह ने बाप या दादा को इसलिए वली करार दिया है ताकि वो लड़कियों की मसलहत, उनके अच्छाई और भलाई के लिए कोशिश करें। और जो शख्स भी मसलहत के बगैर लड़की की शादी न होने दे तो वो शख्स गुनहगार है। और जब तक लड़की उस रुकावट के बुरे असरात से मुतासिर रहेगी, उस गुनाह के असरात उस शख्स की ज़िंदगी में बाकी रहेंगे और उस शख्स ने अपने इस काम से अपने ऊपर जहन्नम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल लिया है। रवायत में है कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे माँ बाप होंगे कि जिनके आमाल नेक और अच्छे होंगे, उसके बावजूद उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की थी, जिसके नतीजे में वो गुनाहों में मुब्तला हो गए। तो अपने बच्चों को गुनाहों और हराम में पड़ने से रोकना वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम में जल्दी शादी कर देने की ताकीद की गई है। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, शरीयत के इस हुक्म को राह हल के तौर पर देखें। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने बच्चों की जल्दी शादी करवा दें। इस्लाम इस बात की ताकीद करता है। रहबर इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई जल्दी शादी करने के सिलसिले में यूँ फरमाते हैं, इस्लाम में इस बात की ताकीद है कि शादी जितना जल्दी हो सके होनी चाहिए।
जैसे ही लड़के या लड़की के अंदर शादी और शरीक हयात की ज़रूरत हो उसी वक्त उनकी शादी कर दी जाए, जिसकी वजह सबसे पहले तो शादी में मौजूद बरकतें और फ़ायदे वक्त पर और उम्र गुजरने से पहले हासिल हो जाएंगी, और दूसरी बात यह है कि जिनसी ख्वाहिशात के तुग़यान और हुजूम पर कंट्रोल भी हो जाएगा। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जल्दी शादी करवा दें, और अगर ये मुमकिन ना हो तो उनका निकाह करवा दें और बाद में सहूलत के एतबार से लड़की की रुखसती करवा दें। लेकिन अगर ये भी मुमकिन ना हो तो निकाह मुता के जरिए से उनकी मंगनी करवा दें, ताकि उनका बात करना, उनका एक दूसरे से मिलना हलाल और जायज़ हो जाए। हाँ, निकाह मुता के वक्त दोनों खानदान के लोग लड़का और लड़की के लिए ये शर्त लगा सकते हैं कि या ये आपस में बात कर सकते हैं, या चैटिंग कर सकते हैं, या सिर्फ टच कर सकते हैं, लेकिन नज़दीकी नहीं कर सकते हैं। अब मंगनी के सिलसिले में हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं कि मौलाना साहब, हमने मंगनी कर ली है, हम अपने मंगेतर से बात करना चाहते हैं, उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उसका हलाल तरीका क्या होगा? देखिए, मंगनी या एंगेजमेंट के जरिए लड़का और लड़की एक दूसरे के महरम नहीं हो जाते हैं। गैर ज़रूरी बात करना उनके लिए गुनाह और हराम में पड़ने का सबब हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों की मंगनी कर ही रहे हैं तो उनका निकाह मुता करवा दें, ताकि वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल और जायज़ हो जाएं। इसके अलावा अल्लाह का यह कानून और हुक्म बहुत से फ़ायदे रखता है। निकाह मुता के बहुत से फ़ायदे हैं कि जिन्हें हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। 1. लड़का और लड़की समाज में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीयर प्रेशर से निजात पाएंगे। 2. उन्हें जिंदगी के लिए एक सच्चा कंपेनियन और साथी मिल जाएगा, जिससे वो दोनों हलाल तरीके से एक दूसरे के दुख सुख शेयर कर सकते हैं। 3. दोनों ही अपनी स्टडी और कैरियर पर फोकस कर सकेंगे। 4. दोनों का ईमान महफूज हो जाएगा। 5. जिना जैसे गुनाह कबीरा से भी महफूज हो जाएंगे। 6. निकाह मुता को महरमियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम ने मुता को मुश्किल के हल के तौर पर पेश किया है, जिसके बारे में इमाम मूसा सदर फरमाते हैं, मुता का मतलब जिनसे ताल्लुकात के लिए मुआफ़क़त और एग्रीमेंट करना नहीं है, बल्कि निकाह मुता मुअय्यन और महदूद वक्त तक शादी के लिए मुआफ़क़त करना है, और इस एतबार से निकाह मुता मुमकिन है मंगनी की मुश्किल को हल कर दे, और शायद आइंदा लोगों की निगाह में बेहतरीन शादी यही हो। इसी तरह निकाह मुता गलत इंतखाब और तलाक की मुश्किल को भी हल कर सकता है। फिर इमाम मूसा सदर कुछ देर फिक्र में डूब जाते हैं और फिर फरमाते हैं, ये दीन आसान दीन है और हमारे हक से ज़्यादा इसने आसानियाँ अता की हैं। निकाह मुता इस ज़माने का मोजिज़ा साबित हो सकता है, लेकिन अफसोस कि उसे इख्तिलाफ और तनकीद का ज़रिया करार दे दिया गया है। निकाह मुता की इस सीरीज में हमने 3 वीडियोस आप हजरात की खिदमत में पेश की। आइए देखते हैं कि इन सब का कंक्लूजन और नतीजा क्या निकलता है। पहली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि निकाह मुता कुरान, रवायात और असहाब के कौल और अमल से साबित और जायज़ है। दूसरी वीडियो में हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि निकाह मुता का फलसफा क्या है। निकाह मुता ज़िना नहीं है, निकाह मुता प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का एक मुनज़्ज़म और मुक़द्दस कानून है कि जिसको अल्लाह ने हलाल और जायज़ करार दिया है। तीसरी यानी इस वीडियो में हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि निकाह मुता का तरीका क्या है, निकाह मुता किसके साथ अंजाम दिया जा सकता है, और निकाह मुता की कंडीशंस और शराइत क्या हैं, और निकाह मुता जवानों की जिनसी मुश्किलात और महरमियत के मसले को हल करने का बेहतरीन हल है। इन 3 वीडियोस में हमने कोशिश की है कि निकाह मुता से मुताल्लिक सारे पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करें, लेकिन बहरहाल बहुत से पॉइंट्स छूट गए हैं। अगर निकाह मुता के सिलसिले में आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अपने प्रोग्राम सबील कमेंट में निकाह मुता से मखसूस एक एपिसोड रखेंगे, जिसमें आपके सवालात के जवाबात को बयान करेंगे। इंशाअल्लाह नुक्ता निगाह में अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।